Hello student, myself KK Bhatt. Once again I am here with the video of voice, passive voice. Dear student, today I am going to teach you future indefinite tense. Future indefinite tense. Yes, I have told you what is the structure of future indefinite tense. See here, in active voice we use will or shall plus first form of verb. It changes into passive voice. Will be or shall be plus third form of verb. It means here will be and shall be with third form of verb. Try to understand through the example. He will read a book. He will read a book. See here, he is subject, a book is object. So, just take this sentence into passive voice. What's your answer? A book will be, what is third form of it? Read by me. A book will be read by me. It is clear to everyone? Now see one more example to understand it is, they will write an essay. They will write an essay. So what is passive voice? An essay will be written. What is third form of right? Written by them. Written by them. So what do you understand? Future indefinite tense. Here, in active voice, we use will or shall with the first form of verb. In passive voice, will be or shall be plus third form of verb. See here how to change active voice in passive voice. He will read a book. Here he is subject, a book is object. So interchange the sentence into passive voice. A book take the place of subject. A book will be read by me. Now I say as they will write an essay. See here an essay. Here an essay is come here. An essay will be rated by them. I think it is clear how to change active voice into passive voice in affirmative sentence. Now see in what's happened in the negative sentences. See here negative sentence. नेगेटिव में हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस में क्या होगा? इसमें यहाँ विल आप लगाओगे, शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ. सी will not be as shall not be. It means we have to say this will not be or shall not be. Now see here and try to understand from the example. इसको example समझो आप. Suppose that if anyone say they will not insult the poor. They will not insult the poor. It means the poor is what? That is a object. Now see here how to change into passive voice. The poor. अब देखोगे the poor will not be.
According to the formula, the poor will not be insulted. I-N-S-U-L-T-E-D, insulted. No need to use by with they, because here is subject not certain. Here subject is not certain. Who is certain? We do not know. So just don't need to use the poor will not be insulted. That is sufficient. If you use by then, that is not incorrect, but that is not proper. So just leave. आप चाहो तो इसको बस the poor will not be insulted, आप इतना भी लिख करके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। या बाई देन करना चाहते करो, बट नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो सर्टेन नहीं है, किसने वो इंसल्ट किया। ये हम मॉस में जब होते हैं चीजें से जब कहा जाए द पीपल का यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं, ठीक है, एनीवन का यूज करते हैं, तो एवरीवन का यूज करते हैं। या सर्टेन सब्जेक्ट सर्टेन नहीं होता है। इन दिस कंडीशन देयर इज नो नीड टू यूज बाय, यानी बाय के साथ हम यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस यू राइट थर्ड फार्मा और रेलेवेंट। नाउ सी people will not abuse him. People will not abuse him. See here, so he just use as a object, तो उसको आप किस में चेंज कर लोगे, सब्जेक्ट में चेंज करो, क्या होगा, he will not be abused. Just you write he will not be abused. No need to use by with people, because here subject is not clear. यहाँ सब्जेक्ट क्या है, क्लियर नहीं, इसलिए बेटा हमें by people लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। I think it is clear how to change negative sentences into passive voice. So see here one more. I shall read my book. I shall read my book. What do you understand here? My book. See here, use I shall not. I shall not read my book. Your answer is my book. यहाँ आप will करोगे, shall नहीं करोगे, क्योंकि my book के साथ will आएगा। आप अच्छी तरह जानते हो I और we के साथ shall यूज करते हैं। तो my book will not be read का थर्ड पार्ट होगा read by me. So my book will not be read by me. It is clear how to change negative sentences in passive voice. Now see interrogative sentences. अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखो कैसे सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड रहने दोगे, विल या शैल का यूज करते हो तो करो, यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट आप कर दो, प्लस नॉट कर सकते हो, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे विल और शैल में कोई चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। क्लियर। अब यहाँ नॉट यूज करना है, नॉट यूज करो, अब प्लस यहाँ भी लगा दोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। मतलब यहाँ पे हम नॉट बी का यूज यहाँ करेंगे, नॉट बी का यूज हम यहाँ करेंगे, ठीक है। मतलब वर्ड्स कहते हैं क्वेश्चन वर्ड विल और शैल। क्वेश्चन वर्ड जैसे आप कहते हो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड में कोई सेंटेंस नहीं करेंगे, या विल या शैल यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, आप नॉट यूज करोगे, बी यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का करोगे। अब जैसे मान लो एग्जांपल दे सकते हो,
why will they not complete their work? तो क्या देखा हमने? See here, why will they not complete their work? What their work? Their work is object. अब इसको अगर पैसे वाइज बनाते हो तो क्या करोगे आप वाई को वाई रहने दो, विल एंड विल रहने दो, अब देयर वर्क को यहाँ लाओ, देयर वर्क, राइट? यहाँ नॉट का यूज करो, बी का यूज करो, वाई विल दे देयर वर्क नॉट बी कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा? नॉट बी कंप्लीटेड, क्लियर? तो why will they not completed their work? Why will they not completed their work? तो आंसर क्या होगा? Their work. Why will their work not be completed? No need to use why will there. It's clear? No need to use why will there. So I think all will be changed. Future indefinite tense into passive voice. It is clear to understand? Suppose that if a sentence is given like that. Who will pluck the flower? Who will pluck the flower? तो सेम वही प्रोसेस आपका है, by whom में कन्वर्ट करोगे, by whom will the flower be plucked? By whom will the flower be plucked? It is clear to everyone? By who will pluck the flower? Who को आप चेंज करोगे by whom को? Will आप रखोगे आप who will the? By whom will the flower be plucked? Clear हो गया? जैसे उसमें by whom was the letter written. ऐसे by whom will the flower be plucked? I think it is clear how to change active voice into passive voice, especially for the future indefinite tense. आपको समझ में आ गया? नाउ हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। See, through the chart, just I explain what is the structure of present continuous tense. इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब आप देखो यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक? इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? देखो यहाँ, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस अगर आप देख सकते हो तो क्या हो जाएगा आपका? ये सब्जेक्ट आप यूज करते हो, उसके बाद इज एंड आर यूज प्लस फर्स्ट फॉर्म नंबर प्लस आईएनजी प्लस आर। ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। मींस ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट नाम, फिर इज एंड आर रहेंगे। इसके साथ बेटा बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग आईएनजी फॉर्म जो होता है वो बी के साथ ऐड होकर बीइंग फॉर्म में आ जाता है। बीइंग इंडिकेट करता है कंटीन्यूअस सेंस को, बीइंग जो है इंडिकेट करेगा कंटीन्यूअस सेंस को। इसके बाद आप यूज करोगे थर्ड फॉर्म और प्लस बाय यूज करोगे और ये आपका सब्जेक्ट ऐड करेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो वर्ड सब्जेक्ट is a verb from ing form plus object. तो object form subject is a verb, being third form by subject to object. अब इसको try to understand through the example. जैसे मान लो क्या सा है, we are writing a book. We are writing a, हम लोग एक किताब लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखो, वी आर राइटिंग अ बुक। अब बुक क्या आपका है? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। वी क्या आपका? सब्जेक्ट।
इसको हम चेंज करेंगे अ बुक। अब ध्यान से देखो, अ बुक यहाँ पे क्या है, इज है, अ बुक इज, आप बी लगाओगे, क्या लगाओगे, बी। ओके, चूज द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। बीइंग, व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग, रिटन। तो अ बुक इज बीइंग रिटन बाय अस, बाय अस। आप लगाना चाहो अस लगाओ, ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाय देम भी लगाते, उसे बाय अस भी नहीं लगाते। जनरली आप चाहो द बुक इज बीइंग रिटन भी लिख सकते हो। ओके, तो अब आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हो। people are worshipping. People are, you can use like that, people are liking. People are liking the flower. People are liking the flowers. People are liking the flowers. अब देखो क्या है, द फ्लावर्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, तब यूज कर सकते हो द फ्लावर्स। द फ्लावर्स आर being, the flowers are being liked, use here like, the flowers are being liked by people हम यूज नहीं करेंगे, बोले लिख देंगे the flowers are liked, just you write the, ठीक है, the flowers are liked, it is clear to understand। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम पैसिव वॉइस में सेंस करेंगे। नाउ से नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप चाहोगे तो कोई भी नेगेटिव सेंटेंस ले सकते हो, जैसे वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सही है, हमने आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं बताया क्योंकि नॉट जो होगा आपका बीइंग के पहले आ जाएगा। जैसे आप एक्टिव वॉइस में क्या करते हो, इस जमा के बाद नॉट लगाते हो, वैसे उसमें क्या करेंगे हम, नॉट जो है वो बीइंग के पहले आ जाएगा। तो आप लिखोगे, जैसे मान लो आपका हो गया, लिखोगे फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट being played by us। नेगेटिव में क्या करोगे आप, बीइंग के पहले नॉट लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे तो जाएगा फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। ऐसे और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे शी इज not abusing them, she is not abusing them। तो see here them is what, that is the object, them क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, they हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, they are not being abused, they are not being, ये आपका आंसर हो जाएगा, they are not being abused। I think it is clear how to change negative sentence into passive voice। Okay, see one more example। Teacher is, यहाँ लगा सकते हो my लगा सकते हो, my teacher is not punishing me, my teacher is not punishing them, my teacher is not punishing them। तो व्हाट्स योर आंसर, क्या आंसर आपका होगा यहाँ पे, they हो जाएगा, they are not being क्या हो जाएगा, punished, they are not being punished by my teacher, they are not being
They are not being punished by my teacher. By my teacher. It is clear? My teacher. तो I think now see interrogative sentence कैसे आप बनाओगे उसको आप देखो. Interrogative sentences. अब इसमें क्या करोगे आप? इसका एक्टिव वर्ब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आप यूज करोगे, इज ए मार्क आप यूज करोगे, ठीक. फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हो, नॉट भी यूज कर दो, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका होगा स्ट्रक्चर. अब इसको आप पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, फिर इज ए मार्क में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, पूरा ही करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो, सब्जेक्ट करेंगे, फिर नॉट लगा देंगे. देन आफ्टर यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट को आप क्या करोगे ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इसको अंडरस्टैंड करने से मान लो वाई आर दे नॉट, वाई आर दे नॉट writing, why are they not writing, why are they not writing, why are they not writing their letters. कह सकते हो their letters, their letters subject हो जाएगा. तो why are letters में भी रहेगा, why are their letters, why are their letters not being, why are their letters not being written by them. I think you understand well how to change future indefinite tense and present continuous tense into passive voice. Thanks to watch my video. I hope you will like, share and subscribe my video. Thanks once again.